Turn with me in your Bibles to the book of Matthew chapter 4 and verse 1. मत्ती की किताब में जाते हैं अध्याय 4 पहला वचन। There it says, वहाँ पे ऐसे कहा गया है, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. तो उस समय आत्मा यीशु को जंगल की ओर खींच कर ले गई ताकि शैतान के द्वारा उन्हें परीक्षा की जाए। Notice the scripture over here. It says Jesus was led by the Spirit. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाया गया। One of the places here it says he was led into the wilderness. तो यहाँ पर एक जगह पे कहा गया कि उन्हें जंगल की ओर ले गए। Now the surprising thing is और सबसे अचंभित बात ये है that the Holy Spirit was leading Jesus in the wilderness. कि जो पवित्र आत्मा है वो यीशु को जंगल की ओर ले गए। It was not the devil leading Jesus. It was the Holy Spirit leading Jesus. Very interesting. I want you to note very carefully. तो बहुत ही दिलचस्प से आप इसके ध्यान रखिए कि शैतान वहां नहीं ले जा रहे थे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले जा रहे थे। What do you mean by wilderness? तो इसका मतलब क्या होता है जंगल? Please write this down. कृपया लिख The लीजिए wilderness is not such an exciting place. कि कोई ऐसे उत्साहित जगह नहीं है वो, Most of the wilderness that the Bible mentions is desert. कि जो जंगल जो शास्त्र में दिया गया है वो ऐसे रेगिस्तान है It's a place where there is no water. It's जहाँ पे dry. पानी नहीं, पूरा सूखा पड़ा है। जो मैं This कह रहा is हूँ the place that Jesus was led by the Holy Spirit. तो यही वो जगह है जहाँ पर यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा ले गया। Nothing fancy about it. इसके बारे में कुछ ऐसे कथा कहानी नहीं है, It's a very dry place. बहुत ही सूखी जमीन थी वो, And Jesus was led over here. और यीशु को वहां पर ले जाया गया। Spiritually speaking, आत्मिक रूप से कहा जाए तो wilderness also signifies a place where you don't see anything, you don't hear anything, you don't feel anything. कि जंगल ऐसी जगह है क्या जहाँ पे आप कुछ सुन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। You know, spiritually speaking, आत्मिक रूप से अगर आप सोचे, spiritually speaking, आत्मिक रूप से अगर कहा जाए, wilderness is a place where you don't see anything of God. जंगल ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर को आप देख नहीं सकते। परमेश्वर के कुछ भी कार्यों को देख नहीं सकते हैं. Yes. You don't see, you don't hear God. आप वहाँ पर परमेश्वर को सुन नहीं सकते। It's like there is no vision. ये ऐसे है कि वहाँ पे कोई दृश्य नहीं। You're praying and nothing is happening. प्रार्थना करते जा रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा You're है। fasting and nothing seems to happen. उपवास कर रहे हो लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा होते As हुए। if God is not even looking at कि परमेश्वर ऐसा लगता है कुछ कर भी नहीं रहे, आपको देख भी नहीं as रहे if हैं। God is totally silent. कि परमेश्वर एकदम शांत बैठे हैं, ऐसा लगता है। You don't feel anything when you're praying. You don't have tears. Nothing. Everything is dry. और प्रार्थना करते वक्त भी आपको कुछ महसूस नहीं होता, सब कुछ ऐसा सूखा पड़ा है। This is the place many believers, many Christians give up. तो यही जगह है जहाँ पे बहुत सारी क्रिस्ती हार मान लेते They हैं, just give up. वो हार मान लेते हैं। This is the wilderness. तो यही है जंगल। First thing, write this down. पहली चीज इसे लिख You लीजिए। see, Jesus was not led by the devil. I tell you, he was led by the Holy Spirit into the wilderness. जैसे मैंने कहा यीशु को शैतान नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस जंगल में चले गए थे। In other words, दूसरे अर्थ में he was right there वो वहां पर मौजूद थे where God wanted him to be. जहाँ पर परमेश्वर चाहते थे कि उसे ले जाए। It was not a mistake. ये कोई गलती से नहीं था, It was a hard place. वो बहुत ही कठिन जगह थी, It was a tough place. वो बहुत ही कठोर जगह थी। But in spite of all this, लेकिन इसके it बावजूद was the place where God wanted him to be. परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद रहे। There was no fault of Jesus. तो इसमें यीशु की कोई खता नहीं थी। Many of you are thinking, oh, I'm in this tough place because I might have done something wrong. बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कठिनाई में हूँ क्या, ताकि मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया है, Oh, I must have done really something wrong. मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया। Now, there are people who have made mistakes and they have to go through the wilderness तो experience. ऐसे लोग भी हैं जो गलतियां करके ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं। It's not because of a mistake. ये गलती की वजह से नहीं है, It's not because of something they did wrong. ऐसा नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, It's because you see the Holy Spirit wanted Jesus to be in that place. लेकिन देखिए पवित्र आत्मा चाहता था कि यीशु उस जगह पर आए। The Lord has led you प्रभु ने आपकी अगुवाई की है to the exact place where He wants you to be. बिल्कुल सही जगह पर जहां वो चाहता है कि आप होएं। What you're going through, जिस दौर से आप जा रहे हैं, it's not a mistake. ये कोई गलती नहीं है, God is allowing it to happen. परमेश्वर इजाजत दे रहा है ऐसा होने के लिए। Say, Jesus was led by the Spirit. वचन कहता है कि यीशु की अगुवाई की गई आत्मा के द्वारा, He was not driven, He was led. और देखिए उसे खींचा नहीं गया लेकिन उसकी अगुवाई की गई। You know what is driven? That's driven. Leading is
You go in the front and you say, come follow me. और देखिए अगुवाई करने का मतलब यह होता है कि आप आगे जाते हैं और फिर पीछे पीछे वो आते हैं। When you're driven, you have no choice. When you're led, it's your choice. और देखिए जब आपको खींचा जाता है, जब आपको डराया धमका कर आगे भेजा जाता है, तब आपका कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन जब अगुवाई मिलती है तो आज आपका चुनाव होता है। When you are driven, you have no choice. It's by force. जब आपको आगे धकेला जाता है या खींचा जाता है, तब आपके पास कोई चुनाव नहीं होता, But when ये जोर जबरदस्ती से होता है। When you're led, लेकिन जब आपकी अगुवाई होती है, it's your choice whether you want to follow or not. ये आपका चुनाव होता है कि आप पीछे जाएंगे या नहीं। That's why इसलिए when we are led by the Lord in the wilderness, और हमें अगुवाई मिलती है प्रभु के द्वारा उस जंगल में जाने के लिए, many people fall back. और इसी वजह से बहुत सारे पीछे हट जाते हैं, Many people give up. बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। Today I want to talk to you about the wilderness experience. और आज मैं आपसे जंगल उस रेगिस्तान के अनुभव के बारे में बोलने जा रहा हूं। You see, the Bible says Jesus is a perfect example. और आप देखते हैं बाइबल कहती है कि यीशु हमारे सिद्ध उदाहरण हैं, As he is, so we are. और जैसा वो है वैसे ही हम हैं। Many times we only want the good part of Jesus, like the miracles and the healings and the fish becoming more. And somebody says, okay, let my money become more, you know. और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम यीशु से बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हमें आश्रम ज्यादा मिल जाए, हमारी मछलियां ज्यादा बढ़ जाए या पैसा ज्यादा बढ़ जाए, ये सारी चीजें, But we don't want the other part. लेकिन हमें दूसरा भाग नहीं चाहिए होता। The second point, please write this down. और दूसरा मुद्दा लिख लीजिए, Matthew 3 verse 17. मत्ती का 3 अध्याय का 17वां वचन। And suddenly a voice came from heaven और अचानक एक आवाज आई स्वर्ग से, and saying, this is my beloved son in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। The next verse, अगला वचन, the Holy Spirit leads Jesus in the wilderness. पवित्र आत्मा ने यीशु की अगुवाई की जंगल में जाने के लिए। Lord, प्रभु you just said तूने बस अभी कहा Jesus is your beloved. यीशु तू मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है, So how can you lead your beloved into the wilderness? तो कैसे आप प्रिय को अपने जंगल में ले जा सकते हैं? Lord, if you love me, प्रभु अगर तू मुझसे प्यार करता है, if you care for me, अगर तू मेरी परवाह करता then है, why am I going through what I'm going? Hey, जिस दौर में से अभी मैं जा रहा हूं उसमें से मैं क्यों जा रहा हूं? I pray, मैं प्रार्थना करता I हूं, give, मैं देता हूं, I seek the Lord, मैं प्रभु की खोज I करता do हूं, good. मैं अच्छी चीजें करता Then हूं। why am I going through what I'm going? तो जिस दौर में से अभी मैं जा रहा हूं, क्यों मैं इसमें से जा रहा हूं? My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, in whom I am well pleased. जिससे मैं बहुत खुश हूं। And the next, this thing, तो फिर अगली बात में the Holy Spirit led the daughter and the son in the wilderness. Oh no. पवित्र आत्मा ने बेटे को या बेटी को जंगल की ओर ले गया। अरे नहीं, If God loves me so much, अगर परमेश्वर मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता then है, why am I going through what I'm going? तो मैं इस दौर में से क्यों जा रहा हूं? Let me bring three things to you as the Holy Spirit showed me. चलिए 3 चीजों को मैं आपके सामने पेश करता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर जाहिर की है। The first one, पहला है, you see, अब देखते हैं, the wilderness is a place of preparation. जंगल जो होता है ये तैयारी की जगह होती है। Write this down. लिख लीजिए, A wilderness is a place of preparation. एक जंगल जो होता है वो तैयारी का जगह होता है। It's not like that in your life you will just go through one wilderness experience. There will be seasons of wilderness experiences. और देखिए ऐसा नहीं होता कि जिंदगी बस आप एक ही बार जंगल के दौर में से जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जंगल में से जाने का ऐसे दौर का अनुभव लगातार होते रहता है। You see, अब देखते when हैं, you're going through the wilderness, जब आप उस जंगल से गुजरते हैं, there are not many things in the wilderness. और देखिए जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई नहीं जाती, There are not many comforts in the wilderness. और बहुत ही आरामदायक स्थान नहीं मिलता वहां। You don't have social media in wilderness. वहां पर आपको सोशल मीडिया भी नहीं मिलता, It's like dry. ये एकदम सूखा होता है। There are times when the Holy Spirit will lead you into the wilderness. He will withdraw you into the wilderness. और देखिए ऐसा भी दौर होता है जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपका नेतृत्व करेगा रेगिस्तान यानी उस जंगल में जाने के लिए। Now that's the spiritual. Now let me show you in the natural. चलिए वो आत्मिक था, अभी स्वाभाविकता में In the बता दें। natural, स्वाभाविकता में you will lose your friends. आप अपने दोस्त गंवा बैठेंगे, I'm so lonely. मैं बहुत ही अकेली हूँ, अकेला हूँ। In the natural, स्वाभाविकता you में will feel rejected by your own people. आपके सगे लोगों के जरिए आपको ठुकराहट महसूस होगी, You're not understanding why are these people acting crazy? और आप समझ नहीं पाएंगे क्यों ये लोग जो है एकदम पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, Why don't they see what they are doing? क्यों ये देख नहीं पा रहे हैं जो ये कर रहे हैं, And you feel rejected. और आपको ठुकराहट महसूस You होगी, feel broken. आप टूटापन महसूस करेंगे, And you have nobody to go to. और कोई नहीं होगा जिसके पास जाए आप, Because that fellow whom you used to confide in, he's turned against you also. क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास आप जाया करते थे वो भी आपके खिलाफ है, अभी हो गया है। Your favorite church friend, oh sorry, gossiper, you know, whatever. आपके कलीसिया के पसंदीदा वो दोस्त लोग, ओ कानाफूसी करने वाले लोग। Now you don't have anybody to pick up that phone and talk to. अब आपके पास कोई व्यक्ति बचा नहीं है जो आपका फोन उठाकर आपसे बात करेगा। The only person you can talk to is. अब अकेला व्यक्ति जिससे आप बात कर सकते हैं वो है, And we think it's, God will be very happy if we और talk हम like ऐसा that. सोचते हैं इसके जरिए परमेश्वर बहुत ही खुश होता है। Lord,
प्रभु there's no one for me, Lord. अब मेरे लिए कोई नहीं बचा है। And the Lord says, good, there's no one. Now I have you and you have me. और परमेश्वर कहता अच्छा है कि कोई तुम्हारे पास बचा नहीं, अब मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए हो। Some of you are still crying over your Susie who left you. Some of you are still crying over Harry who left you. You know. और आप में से कुछ लोग अपनी सूजी के लिए रो रहे हैं जो आपको छोड़ के चली गई, कुछ लोग अपनी लैरी के लिए रो रही हैं जो आपको छोड़ के चले गए। You're still carrying a photograph. उनकी तस्वीरों को आप अभी भी आप लिए हुए हैं। And he told your mother, she's just a friend, you know. So you see, God will take you such times, through times of wilderness, परमेश्वर आपको ऐसे दौर में लेके जाएगा, रेगिस्तान के इस दौर में He से, separate you from all the chaff, और जहां पर वो आपको हर एक भूसे से अलग करेगा, where you'll know the difference between your needs and your wants. जहां पर आप समझ जाएंगे कि क्या आप चाहते हैं और क्या दरअसल आपकी जरूरत है। There are things you feel you cannot survive without. और ऐसी चीजें जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उनके बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते, And God will bring you into the wilderness and show you that man does not live by और परमेश्वर आपको उस रेगिस्तान में लाएगा और आपको दिखाएगा कि मनुष्य केवल but by every word that proceeds from the mouth of रोटी ही God. से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। Oh, I thought I cannot live without Susie. और मैंने सोचा था मैं सूजी के बिना नहीं जी सकता, I cannot live without that guy. I thought I cannot live without this person. But the truth is, I'm still here. Hallelujah. मैं सोचा था कि मैं सूजी के बिना नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अभी भी बना हुआ हूँ। I thought I would die. मैं सोचा करता था कि मैं मर जाऊंगा, But somehow, लेकिन किसी तरीके से I'm still alive. Hey, अभी भी मैं बचा हुआ हूँ। you lost this one. इसका गवा बैठे, Somebody died. कोई मर गया, Somebody left you. कोई आपको छोड़ के चला गया, You are still alive. अभी भी आप जिंदा हैं, You are still alive. अभी भी आप जिंदा हैं। Men, इंसान, woman, महिला, shall not live by bread alone, सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा नहीं but रहेंगे, by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रहेंगे। You lost your job. आप नौकरी गवा बैठे, You lost your company. अपनी कंपनी आप गवा But बैठे, you are still picking अभी on भी आप खड़े हैं। the wilderness experience, रेगिस्तान का अनुभव, where the Lord allows you to be separated from everything. जहाँ पर प्रभु आपको इजाजत देता हर एक चीज से अलग होने की, And at that place, और उस जगह पे you are all alone. आप बस अकेले रह जाते हैं, Where you start thinking, जहाँ पर आप सोचने लगते हैं, where you start meditating, जहाँ पर आप मनन करने लगते हैं, where God starts talking to you. वहाँ परमेश्वर आपसे बात करने लगता है। Come on. That's the place वो जगह है where you start thinking about God. जहाँ पर आप परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं, Where you start weeping. जहाँ पर आप रोने लग जाते हैं, Where you start leaning on the Lord. जहाँ पर आप प्रभु पर निर्भर होने लगते हैं, Where you start praying. वहाँ आप प्रार्थना करने लगते हैं, Where you start fasting. वहाँ आप उपवास करने लगते हैं, And where you're trying to listen. और वहाँ पर आप कोशिश करते हैं सुनने की। Anybody there? कोई है? And you're waiting somebody will respond. और आप इंतजार में रहते हैं कि कोई जवाब देगा, Because now you're far away from the city, from the noise. क्योंकि अभी आप शोर शराबे से, अब आप शहर से दूर हैं, You're waiting to listen. आप इंतजार में रुके रहते हैं सुनने के लिए। You're in the wilderness. आप उस रेगिस्तान में हैं, The wilderness रेगिस्तान में is a place of preparation. ये तैयारी की जगह है। If you don't understand this, अगर आप यहाँ नहीं रह करेंगे you'll miss something very crucial. तो कुछ बहुत ही नाजुक बातों को आप गंवा बैठेंगे। The wilderness experience is a critical time where God will prepare you so that He can launch you into your next assignment. और देखिए रेगिस्तान का दौर वो नाजुक क्षण होता है जहां पर परमेश्वर आपको तैयार करता है ताकि बड़े तौर पर वो आपको बाहर ला सके। What you're going through जिसमें से आप जा रहे हैं is a preparation. ये तैयारी है, God preparing you परमेश्वर को तैयार कर रहा है so that He can launch you ताकि वो आपको सबके सामने पेश कर सके into your next assignment. आपके अगले कार्य में। Moses spent many years in the desert. हम देखते हैं मूसा ने कई साल रेगिस्तान में गुजार दिए Before leading the people of Israel, lakhs and thousands and millions of people into the promised land. और लाखों की तादाद में लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की अगुवाई करने से पहले John the Baptist, he was in the desert, the Bible says, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता बाइबल ऐसा कहती है कि वो रेगिस्तान में पाया so गया that he could announce the Messiah. ताकि वो मसीहा का प्रचार कर सके। What about the man Paul?
पौलुस के बारे में क्या, who wrote more than half the nearly 1/3 of the New और Testament. हम देखते हैं जिसने कि 1/3 नया नियम का भाग लिखा, He was in the desert 3 years, 3 साल तक वो रेगिस्तान में था, worshiping, seeking the Lord. परमेश्वर की आराधना करते उसकी खोज करते हुए, And then he writes the New Testament. फिर उसके बाद उसने नए नियम को लिखा, People, they read his things and they say, how can somebody write like that? और उसकी बातों को पढ़ के लोग सोचने में लग जाते हैं कि कैसे ये व्यक्ति ऐसा लिख सकता था। John G. Lake, जॉन जी लेक जी, when he prayed for people, tumors would fall off. जब वे बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, शरीर में की गांठें बस यूं ही निकल के गिर जाती थी। For 9 months, 9 महीने he sought the Lord. उन्होंने प्रभु की खोज की है, He didn't see anything. और देखिए उन्होंने पहले तो कुछ भी नहीं देखा था, One day he started praying for a person on a wheelchair. और एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्हीलचेयर पर का रोगी आया उनके सामने, उनके लिए And प्रार्थना the करने लगे, lady said that as if lightning shot through her, she kicked the wheelchair and she started और वो running. महिला कह रही जैसे कि बिजली उनके ऊपर कड़की थी और वे व्हीलचेयर छोड़ के उठ गई सीधा। What about Pastor Benny? पासवान बेनी जी के बारे में, This man of God, परमेश्वर का ये जन, he would pray for hours together. You know, nobody knew this guy in Canada. और देखिए कोई भी इस व्यक्ति को कनाडा में नहीं जानते थे और घंटों घंटों प्रार्थना में बैठते थे। Many people tell me in Canada, oh, it's so cold. Good, it's cold. और बहुत सारे लोग कहते हैं कनाडा में ये बहुत ही ठंडक रहती है वहां पे, अच्छा है, You cannot go out. आप बाहर नहीं जा सकते, You can seek the Lord. आप प्रभु की खोज कर सकते हैं अच्छे से। Never mind. Tell your neighbor. फिर कोई बात नहीं, And he would seek the Lord for hours. वो घंटों घंटों प्रभु की खोज में लगे रहते थे। And one day, और एक दिन he came out. वे बाहर आए And his mommy said, Benny, और उनकी माताजी ने पुकारा, बेनी dinner's ready. रात का खाना तैयार है। And he opened the door. और जब उन्होंने दरवाजा खोला, And as he opened the door, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला I said, Mama, और उन्होंने कहा, मम्मा, she flew. पवित्र आत्मा के सामने दूर जा गिरी वो। And then, और फिर when Pastor Benny would move his hand, पासवान बेनी जी जब अपने हाथ हिलाए people's stadiums would fall down. और स्टेडियम में आए हुए सारे लोग जो गिर जाते थे। Amazing man of God. परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन। So you see, तो आप देखते हैं the wilderness is a preparation time. और रेगिस्तान जो होता है ये तैयारी का समय होता है, Nobody knows you. कोई नहीं जानता आपको। So the first point, तो पहला मुद्दा, God allows us to go through that wilderness experience so that He can prepare us for the new assignment that's coming into our life. परमेश्वर आपको इजाजत देता है कि आप उस रेगिस्तान के दौर में से जाएं ताकि वो आपको तैयार करके खड़ा करे आपके नए कार्य के लिए। Point number 2, the wilderness, God allows you to go as an example for us to depend on the word of God. और देखिए रेगिस्तान में से जाने का जो अनुभव जो होता है, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि हम जो है उसके वचन पर निर्भर होने के लिए तैयार हो जाए, सीखें। You see, in the wilderness, आप देखते हैं रेगिस्तान, you don't feel anything. आपको कुछ महसूस नहीं होता वहां। You know, many times people write to me and say, Brother, I really liked your service. Something's just happening to me. और भाई वो लिखते हैं कि भाई आपके सभा मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो ऐसे होने लगा मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए And I like that. और अच्छा लगता है मुझे। But the truth is, लेकिन सच्चाई है many times, बहुत बार I don't feel anything. मुझे खुद कुछ महसूस नहीं होता। I said, God, everybody is feeling. Let me also feel. परमेश्वर हर कोई महसूस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, मुझे भी कुछ महसूस करने दो। Nothing. कुछ नहीं होता। In the wilderness, तो आप देखते हैं you रेगिस्तान don't में have any of this stuff. और आपके पास ऐसी कोई चीजें नहीं होती, No vision, कोई दर्शन नहीं, no dream, कोई सपना नहीं, dry. पूरा सूखापन। God wants you परमेश्वर चाहता है to depend on the word. कि आप उसके वचन पर निर्भर हो जाएं। Sometimes I feel like, Lord, what is this, और Lord? कभी कभी ऐसा महसूस होता है, प्रभु ये क्या है? Son of Matthias, son of this one, son of this one, son of father of this one, father. Then he had a son and he had 5 sons, and 5 sons had 10 sons and 50. So the Holy Spirit said, son, तो पवित्र आत्मा कहता है, बेटे would you just read the word? तुम क्या बस वचन पढ़ोगे? Okay. ठीक है, Okay, now I'm reading the word now. ठीक है, अब मैं वचन पढ़ रहा हूँ। Son of this. इसका बेटा, Read again. Huh? फिर से पढ़ो, Again. फिर से Son of that. उसका बेटा, He had 5 sons. उसके 5 बेटे थे, They had 11 donkeys. Donkeys. उनके 11 गधे थे। Lord, why do you want me to study about donkeys? प्रभु क्यों, क्या तू चाहता है कि मैं इस गधे पर अध्ययन करूं? Suddenly, अचानक one word will start shining. एक वचन जो आ जाएगा, Son of this one. Ah, इसका बेटा। son, do you know what this word means? और बेटे तुम्हें पता है इस वचन का मतलब क्या है? No. नहीं, Okay, look it in the encyclopedia. इंसाइक्लोपीडिया में देखो। Okay, then I do it. ठीक है, मैं करता फिर। And then और फिर the word speaks to me. वचन मुझसे बात करने लगता है And the Holy Spirit said, son, और फिर पवित्र आत्मा कहता है, बेटे nothing in the Bible is irrelevant. और बाइबल में कि कोई भी ऐसी वचन, कोई भी ऐसा शब्द बेकार जैसे नहीं है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God will speak to you in your hard places. परमेश्वर आपकी कठोर जगह पे आपसे बात करेगा In the times of wilderness, कि इस रेगिस्तान के बुरे दौर में there'll be nothing you can depend on. ऐसा कुछ नहीं होगा जिस पर निर्भर हो सके, But there's one thing that you can depend on. लेकिन एक चीज जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं And God will make you to depend on और परमेश्वर आपको इस पर निर्भर कराएगा, is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन।
You see, many times when you're going to pray for a person, देखिए बहुत बार क्या होता है जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, you look at the person's condition. आप उस व्यक्ति की हालत को देखते हैं, My अरे God, बाप रे, you brought me to pray over this person. आप मुझे लाए इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को, You should have told me. तुमने मुझे पहले बताया I होता। thought it should have small headache, small और मैं backache, तो सोचा था कि कोई छोटा मोटा सिर दर्द होगा या पीठ दर्द होगा, some chikka backache, it's okay, कोई हल्का फुल्का ऐसा पीठ दर्द होगा। What is this? This fellow is fully turned like this. और ये क्या, ये तो व्यक्ति पूरी तरह ऐसा मुड़ा हुआ है। And that person who is taking you is telling, प्रार्थना करो, प्रार्थना और वो करो. व्यक्ति जो आपको लेके गया था वो आपसे कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। And your faith which was here, और आपका विश्वास जो यहाँ था, and you are already feeling, Lord, take him home, और आप पहले से ऐसा महसूस कर रहे हैं, प्रभु ले जाओ इसे घर। But that person says, लेकिन उस व्यक्ति वो कहता प्रार्थना है करो, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उठेगा ये. At that time you don't feel the anointing. उस समय पर आपको अभिषेक महसूस ही नहीं होता, You feel like, open दरवाजा खोल, भागने दो मेरे को यहाँ से. और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कहते हैं दरवाजा खोलो, भागने दो मुझे। Hello, yes or no? हाँ या नहीं? At that time, उस समय you are in the wilderness. आप रेगिस्तान के दौर में हैं। At that time, उस समय you must not depend on your feelings. आपको अपनी भावना पर मजबूर नहीं होना है। You said your word says, hey, आपको कहना चाहिए तेरा वचन कहता है I shall lay hands on the sick मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा and they shall be healed. और वे चंगे हो I जाएंगे। don't feel it. मुझे महसूस नहीं हो I रहा, don't see it. मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, But I believe your word. लेकिन मैं तेरे वचन में विश्वास करता हूँ। When you're going for that interview, जब मैं जाता हूँ उस इंटरव्यू के लिए, you go inside आप अंदर जाते हैं and there are already like a queue. It's going to the second floor. और इतनी बड़ी लंबी कतार होती है जो दूसरी मंजिल तक पहुंची होती है, And a voice tells you, और एक आवाज आपसे कहती है Gaya tu. गया तू। Or already two people, some girls are coming smiling down. और दोनों पहले से ही तो लड़कियां अच्छे से मुस्कुराते हुए आ रही बात, And you're like, you're not so good looking और boy. आप अच्छी दिखती नहीं हो। Oh God, हे परमेश्वर, me. मैं Forget it. भूल जाओ। Already these people are coming smiling. पहले से ये लोग मुस्कुराते हुए आ रहे But हैं, now, लेकिन नहीं, what is yours is yours. जो Hallelujah. आपका है वो आपका है। God said, परमेश्वर कहा you should say, तुम्हें कहना चाहिए my God मेरे प्रभु shall supply पूर्ति करेगा all my needs मेरी सारी गरज को according to his riches. उसकी महिमा के मुताबिक। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I tell you, मैं कहता हूं आपसे, you will go inside आप अंदर जाएंगे because you depended on the word. क्योंकि आप वचन में निर्भर रहे, You will receive that job. आपको नौकरी मिलेगी। Lift your hand and say, I receive it. Hey, अपने हाथ लगा मैं ग्रहण करता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Tell your neighbor, depend on the word. अपने पड़ोसी के बोले वचन में निर्भर हो जाए। In the wilderness, रेगिस्तान में there's nobody to lean on. और कोई नहीं जिस पर आप टेका लगा सकते There हैं, are only cactuses. वहां पर कुछ कटीली झाड़ियां ही हैं बस, You can't lean on a cactus. और कटीली झाड़ियों पर आप निर्भर नहीं हो सकते। तू ही मेरा सहारा है cactus. No. Cactus पे जाएगा तो कटेगा. You can't sleep. There's no shade. और वहां पर ऐसे सोने के लिए भी कुछ नहीं है, But the Lord will be your shade. Hey, लेकिन प्रभु आपके लिए आश्रय बनेगा। when you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हैं, suddenly thought will come. अचानक एक विचार आएगा, You slept at 1 o'clock. तुम 1 बजे सोए, सो जा वापस. वापस हो जाओ। You should say no. आपको कहना चाहिए नहीं, I am a man of God. मैं परमेश्वर का जन हूँ, I have to pray. मुझे प्रार्थना करनी है। Now it's 5 o'clock. Hey, badaka sabara badala. I will sleep on the sofa, but I will sit and pray. And the Holy Spirit is my intercessor. He will pray through me. और पवित्र आत्मा मेरा प्रार्थना विनती करने वाला है, वो मुझ में होकर प्रार्थना करेगा। When you depend on the word, जब आप वचन में निर्भर होते the हैं, Bible says, बाइबल कहती the है, Holy Spirit, for we do not know how we should pray for. Sometimes we are lazy, sometimes we cannot, sometimes whatever. But now you're depending on the word. And suddenly, 5 o'clock, you're fresh. Rakabandala. बाइबल कहती है कि नहीं पता कैसी प्रार्थना करनी होती है, कभी हम आलसी हो जाते हैं, कभी कुछ और बात हो जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि वो हमारी मदद करेगा और आप ताजगी से भर के प्रार्थना करने लग जाएंगे। The Holy Spirit is preparing you. पवित्र आत्मा को तैयार कर रहा है, Depending on the word. आप वचन पर निर्भर होते हैं। Jesus had no Peter, Jesus had no Paul, Jesus had no Martha, no Mary, nothing, nobody. He's alone in the desert. और यीशु मसीह के पास देखिए कोई पतरस नहीं था, थोमा, मार्था, मरियम, कोई भी नहीं था, वो अकेले रेगिस्तान में थे। What did he do? क्या किया उन्होंने? He was the word himself. वो खुद भी वचन थे, But लेकिन you notice Matthew 4:4. मत्ती का 14 वचन Now दिया है। Jesus said, यीशु ने कहा, he says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now what is he doing? He quoting scripture. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के वचन से, मुख से निकले हर एक वचन से जिंदा रहेगा। वो क्या कर रहे थे? वो वचन को अंगीकार कर रहे थे। Tell your neighbor, speak the word. अपने पड़ोसी को बोले वचन को बोलो, Just don't read the word. सिर्फ वचन को पढ़ो ही मत, Speak the word. वचन को बोलो। Lift your hand and say, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. अपने हाथ लगाकर बोलिए, मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Lift your hand and say, my body is a temple of the Holy Spirit. अपने हाथ लगाकर बोलिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। No sickness can stay, no disease can stay. Out, out, out in Jesus' name. कोई बीमारी, कोई रोग मेरे अंदर रह
नहीं सकती, बाहर आ यीशु के नाम में। Excess weight leave my body now in Jesus' name. शरीर की चर्बी घट जाए मेरे शरीर से यीशु के नाम में। If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who gave life to his mortal body will raise you, renew you. Hallelujah. जिस आत्मा ने यीशु को मरे में से जिलाया और वो तुम में बसा हुआ है, तुम्हारे अंदर रहता है, तो तुम्हें भी नया जीवन देगा। Your scriptures must flow through you. वचन जो आपके जरिए बहना चाहिए। Hallelujah. बोले हालेलुया। Go to Matthew 4:7. मत्ती का चौथा अध्याय 7वां वचन। It is written again, you shall not tempt the Lord your God. यीशु ने उससे कहा, ये भी फिर से लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। Go to Matthew 4:10. मत्ती का 4:10 में देखें। Jesus said, away with you, Satan. यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Here we see Jesus depending on the word. यहाँ देखते यीशु मसीह वचन पर निर्भर हो रहे हैं। The Bible says Jesus is our example. और बाइबल कहती है यीशु हमारे सिद्ध उदाहरण है। If Jesus depended so heavily on scripture in the wilderness, shouldn't we do that? और यीशु रेगिस्तान में इतने भारी तौर पे वचन पर निर्भर हुए, तो क्या हमें नहीं होना चाहिए? Many people in the church, they never read the Bible. कलीसिया में बहुत सारे लोग कभी बाइबल पढ़ते नहीं है। They'll sit on the potty and read the whole newspaper. पार्टी में बैठ के पूरा अखबार पढ़ लेते हैं। It's a shame. ये शर्म की बात है। They will read WhatsApp, what that fellow said about the monkeys. They will see all the videos, everything. व्हाट्सएप पर भेजा हुआ हर एक वीडियो, हर एक मैसेज वो पढ़ते रहेंगे। All the forwards they'll open. And then they will complain, 256 GB is not enough for me. फिर वो शिकायत करते 256 जीबी काफी नहीं है मेरे लिए। You open everything that comes on your phone, आपके फोन में आई हर एक चीज को आप खोलते, but you never open your Bible. लेकिन कभी आप बाइबल नहीं खोलते। So sad. बड़ी दुख की बात I है। want to tell somebody मैं किसी से कहना चाहता that in the year 2020, हूं 2020 में make it a goal. एक लक्ष्य बनाएं। Tell your neighbor, a game without a goal is just running around. और एक खेल जो होता है बिना लक्ष्य के बस यहाँ वहाँ भागना ही है। Somebody said, what are you playing? किसी ने पूछा क्या तुम खेल रहे हो? He said, I'm playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। I said, where is the goal? लेकिन गोल कहाँ है? He said, no uncle, we're just playing. नहीं गोल नहीं अंकल, हम बस खेल रहे हैं। You're not playing football, you're just playing ball. तो फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, बस बॉल खेल रहे हो। Because there is a goal. क्योंकि इसका लक्ष्य है। Your life must have goals. आपकी जिंदगी में से लक्ष्य होने चाहिए। What are your goals for scripture in 2020? 2020 में के वचन के लक्ष्य क्या है आपके? I tell you my goal. मैं बताता हूँ अपना गोल। In 2020, 2020 में I should finish reading the Bible twice. 2 बार मुझे अपना पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर। Once you must, in this year, you must complete the Bible. इस साल में कम से कम एक बार तो आपको अपना बाइबल पढ़ के पूरा करना है। Suppose if you live to 70, the Bible says, और देखिए बाइबल कहती है अगर आप 70 साल जीते हैं and you're 25 years old today, और आज आपकी उम्र 25 साल की है, imagine how many times you've read the जरा Bible. कल्पना करें कितना बार आपने बाइबल पढ़ लिया होगा। Wow. The scripture will flow through you. Ah. वचन आपके जरिए बहने लग जाएगा। Somebody receive this in Jesus' name. ग्रहण करें इसे यीशु के नाम में। You will lean on the scripture. आप वचन पर टेका लगा सकेंगे। May God bless you today. परमेश्वर आपको आशीष दे आज। Somebody lift your hand and say, I receive in Jesus' name. मैं अपने हाथ रख के मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। The last one, आखिरी the wilderness reveals what is inside of us. रेगिस्तान ये जाहिर कर देता है कि क्या है हमारे अंदर। Why does God lead us into wilderness? क्यों परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है रेगिस्तान में जाने की? Write this down. लिख लीजिए। The Lord will reveal what is inside of us. प्रभु आप पर जाहिर कर देगा कि हमारे अंदर क्या है। It's not that God doesn't know what's inside of you. ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या है। Many times, बहुत बार हम नहीं जानते हमारे अंदर क्या है. हम खुद नहीं जानते हमारे अंदर क्या है। God says, son, you're proud. परमेश्वर कहता बेटे तुम्हारी समस्या है। Me? मैं? Which side? That's why God met Jacob. याकूब को परमेश्वर ने He said, what's your name? पूछा तुम्हारा नाम क्या है? You know what is Jacob? आप जानते हैं याकूब? The word Jacob means धोखेबाज, deceiver. याकूब नाम, याकूब शब्द का मतलब है धोखेबाज। So angel is with him. तो स्वर्गदूत उसके साथ मल युद्ध कर रहा था He gives him the mic. What's your name? और उसे नाम देता, माइक देते पूछता तुम्हारा नाम क्या है? मैं धोखेबाज हूँ. मैं धोखेबाज हूँ। He says, because you know who you are, और क्योंकि तुमने जान लिया तुम कौन हो, I will change your name. मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। Change happens when you admit what you are. बदलावट यानी परिवर्तन तब होता है जब आप मान लेते हैं कि आप कौन हैं। दारू नहीं पीने चाहिए. मैं दारू पीता है? किधर? गटर में कौन सोया था? मैं. तेरे कपड़े तो मैंने धोए. You know when God led Israel through the wilderness, आप देखते हैं जब परमेश्वर ने इजराइल की अगुवाई की रेगिस्तान में से, they were going through the wilderness. वे रेगिस्तान में से जा रहे थे। They were on their way to Canaan, वे बस कनान पहुंचने ही वाले थे, but they were thinking of Egypt. लेकिन वो मिस्र के बारे में सोचने लगे। They were not thinking of Canaan.
कनान के बारे में नहीं सोच रहे थे वो। Interesting. दिलचस्प है, They were thinking of Egypt. वे मिस्र के बारे में सोच रहे थे, And their mouths were salivating with the food of Egypt. और मिस्र में जो खाना पीना उनको मिलता था उनकी याद करके उनके मुंह में पानी भराया। So nice, na, over there. कितना अच्छा था ना वहाँ, The onion, the fish. कांदा, मछली। They're not thinking what God has kept for them. वो ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर के लिए क्या रखा है, They never meditated on what God told them you receive there. और कभी इस बात पर उन्होंने मनन नहीं किया था कि परमेश्वर से कहा था कि तुम्हें क्या मिलेगा वहाँ, They thought about what they left behind. लेकिन वो ये सोचने लगे कि क्या वो पीछे छोड़ आए हैं। Many times when we are going through the wilderness experience, believers especially, और बहुत बार जब हम इस प्रकार के रेगिस्तान के दौर में से जाते हैं, खास करके विश्वासी लोग, we remember our past life. हमारी बीती जिंदगी को हम याद करते हैं, We remember the comforts. और जो आरामदायक सुविधाएं हमको मिलती थी वो हम याद करते हैं, And yet we forget how godless it was. और फिर हम ये भूल जाते हैं कि कितना अधर्म से भरा हुआ था वो। So nice now, 31st we used to dance like और that. कितना अच्छा था ना, 31 दिसंबर को हम नाचते थे, And see here now. और देखो यहाँ पे Hallelujah. Really? Dancing is not bad. और नाचना गलत नहीं है, What did it happen after that? लेकिन उसके बाद क्या होता था, Oh, that was. But we remember all those things. लेकिन वो सारी चीजें हम याद करते हैं। कैसा ना हम लोग बियर बार में बैठता था मजा। तू चर्च में बैठ रहा है, उधर याद कर रहा है तू। See how people when they are going through tough times. कैसे लोग होते हैं जब वे बुरे दौर से जाते हैं। कितना अच्छा था ना। You're not meditating on what God has kept for you. आप उस पर मनन नहीं करते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आगे। Many people they want prophecy. Prophesy. बहुत सारे लोग थे कि उनको भविष्यवाणी चाहिए, भविष्यवाणी करो। For what? किस लिए? You still meditate on what happened. आप अभी भी मन करते थे जो हुआ था। So the first thing, it exposes what's inside of you. तो पहली चीज यह है कि ये पर्दाफाश कर देती है कि आपके अंदर क्या है, You're still meditating on your back life, your past life. और आपकी बीती जिंदगी में जो कुछ घटा था उसी पर आप मनन करते हैं। Secondly, दूसरी चीज, some of us when we go through the wilderness experience, और हम में से कुछ लोग जब इस प्रकार के रेगिस्तान के दौर से जाते हैं, we are in pain now. और देखिए अब हम दर्द में होते हैं, We are hurt now. हम ठेस खाए हुए We होते हैं, feel rejected now. हम ठुकराहट महसूस करते हैं। So now what to do? तो अब क्या करें? We don't allow God to be at the balm of Gilead. और देखिए हम परमेश्वर को इजाजत नहीं देते हैं कि वो गिलाद का मलहम बने। So we say, okay, तो हम कहते हैं ठीक है, let me be Abraham dealing with Hagar. Let me just appease myself. सभी ने मुझे छोड़ दिया, सामने हेगार है, चलेगा, कोई भी चलेगी। तो हम कह रहे थे चलो मैं अब्राहम जैसा बन के हजीरा के साथ ये सौदा कर लेता हूं, सबने मुझे वैसे भी छोड़ दिया है, हजीरा चल जाएगी। Thank God Joseph was going through the wilderness experience, but he did not compromise his thing with Potiphar's wife. Hey. और देखिए परमेश्वर का धन्यवाद, यूसुफ जो था वो इस रेगिस्तान के दौर में से जा रहा था, लेकिन अपने आप को उसने पोतीफर की पत्नी के साथ समझौता में नहीं लाया। You are going through a tough time. और जब कठिन दौर में से होते आप, Just don't lean on somebody. किसी और पर टेका न लगाएं। That's not your leaning support. That could be a spear that you will regret for the rest of your life. और कोई ऐसा हथियार या फिर तलवार हो सकता है जो भाला हो सकता है जो आप पूरी जिंदगी भर पछताते रहेंगे। But pastor, I'm in pain. लेकिन पासवान जी मैं दर्द में हूं, Then go to your God. तो अपने परमेश्वर के पास जाइए। I don't have anybody to share my heart. और मेरे पास कोई नहीं जिससे अपना दिल बांट सकूं, Share it with the Lord. प्रभु के साथ बांटिए। God is bringing somebody good. परमेश्वर किसी अच्छे को ला रहा है। बोले पास्टर, पासवान जी मेरे बीवी मेरे को छोड़ के, मेरा पति मेरे को छोड़ के गया, इसलिए अभी कोई नहीं है। अभी सूजी इतने अच्छी बात करती है सीसीडी में बैठ के, हंस मत यार। हालेलुया भी बोलती है, बाइबल भी लेके आती है। हम लोग ज्यादा नहीं स्क्रिप्चर बांटते हैं। अच्छा उठ, वहां से उठ, उठ वहां से उठ। Be careful. सावधान रहिएगा, What you call comfort will become pain. जिसे आप आरामदायक नाम देते हैं वो दर्द न बन जाए। Some people they lean on alcohol. कुछ लोग शराब का टेका लेते हैं, बोले बिजनेस बहुत डाउन है। बिजनेस डाउन है तो अल्कोहल क्यों जा रहा है भाई? अल्कोहल से बिजनेस ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। But you have an excuse. लेकिन आपके पास बहाना है, You have a compromise. आपके पास समझौता है, Because you don't want to take that pain to God. क्योंकि वो दर्द को आप परमेश्वर के पास नहीं ले जाना चाहते, So you're trying to drown it in alcohol. तो आप उसे डुबो लेना चाहते हैं शराब में। Pastor, पासवान जी I have financial problem. पैसों की समस्या है मेरे सामने, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। इसीलिए तो स्मोक कर रहा है। अच्छा, टेंशन उड़ते उड़ते तू भी उड़ जाएगा एक दिन ना, इसीलिए पी रहा सिगरेट। नहीं पास्टर आप नहीं समझे, क्यों? मैं क्या ऊपर से आया? सर
You see, the problem is देखिए समस्या ये है, these things are in your heart. ये सारी चीजें आपके दिल में है God is exposing them. और परमेश्वर का पर्दाफाश करता है। When you give your pain to God, when you give your deepest emotions to God, God will never abuse it. He will take it and He will build something out of it. देखिए जब Come आप on. अपना दर्द परमेश्वर को सौंपते, जब आप अपने गहरे आभास को परमेश्वर को सौंपते, तो वो आपका पर्दाफाश नहीं करेगा, वो बलहम लगाएगा उस पर। You don't have to go internet and say, let me see some pornography because I'm feeling so much of pain. Let me see some stripper on the internet. No, 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 no. Jesus stripped Himself on the cross. You need to see that. Hey! जब आप दर्द में होते हैं तो आपको इंटरनेट पे जाके कोई अश्लील चीजें नहीं देखना है। यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए घायल कर दिया क्रूस पर, वो नंगा हो गया आपके लिए। What would you see? क्या देखते हैं आप? I want to tell every person. हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, Nobody speaks about these things, but the Holy Spirit is saying that you need to address these issues. कोई इन बातों पर चर्चा नहीं करता, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हें इन बातों पर बोलना चाहिए। Some of you have a great calling, आप में से कुछ लोगों का बड़ी महान बुलाहट है, but I came to expose the plans of the devil. लेकिन शैतान की जो योजनाएं हैं उसका पर्दाफाश करने में आया हूँ। Some of you are called to shake nations. Hey, आप में से कुछ लोगों को बुलाया गया राष्ट्र को हिलाने के लिए। if you can receive it in Jesus' name. अगर आप ग्रहण कर सके, ग्रहण करें यीशु के You नाम know में। I'm talking by the Holy Spirit. आप जानते हैं जो भाई बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा की ओर से है, He's allowing you to go through that wilderness, और वो आपको इजाजत दे रहा है कि उस रेगिस्तान में से आप जाएं। to reveal to you what is in your heart. आप प्रसारित करने के लिए आपके दिल में क्या है। You know, when you're going through the wilderness, जब आप बुरे दौर में से जाते हैं, you start grumbling. आप शिकायत करने लगते हैं, What is this, Lord? ये क्या है प्रभु? Why? क्यों? That grumbling is in your heart. वो शिकायत, वो खुड़खुड़ाहट आपके दिल में है। No matter you get the best woman in town, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको सर्वश्रेष्ठ महिला ही नगर की या शहर की क्यों ना मिल जाए, she can be your wife. वो आपकी पत्नी हो सकती है। You can have the most handsome dude to be your husband. आपके पास सबसे आकर्षक व्यक्ति आपके पति के रूप में हो सकता है। You are complaining because you have no husband. You're complaining because you have no wife. But you see, God is allowing you to go through this so that He can reveal to you that His grumbling nature is in you. देखिए परमेश्वर आपको इजाजत दे रहा है इस अनुभव में से जाने के लिए, ताकि आपके ऊपर जाहिर कर सके आपके अंदर ये कुड़कुड़ाने और शिकायत करने का स्वभाव है। ये सीट कितना गंदा है। God revealed to me. परमेश्वर ने जाहिर किया मुझ पर। He said, son, मैंने कहा बेटे, जो तेरे अंदर है वही तेरे जुबान पर आएगा। गन्ने को कितना भी मरोड़, कितना भी कुचल, वो मीठा पानी देगा। क्योंकि उसका नेचर है वो। मैं गन्ने वाले से कहा, बाबा कितना उसको दबाएगा, कितनी असं मोडणार? साहेब ज्यूस निघाला पाहिजे। Somebody, मैं किसी कहना चाहता हूं यहाँ, that God is allowing you to go through this. परमेश्वर आपको इजाजत दे रहा है इसमें से गुजरने की। Watch what's coming from your mouth. सावधान रहिएगा कि आपके मुंह से क्या आता है, इसकी चौकसी करें। And at that moment, और उस समय repent. पश्चाताप कीजिएगा। Say, God, वो कहना है परमेश्वर change me. मुझे बदल दे। And I'll tell you what. और मैं कहता हूँ, Not only will you come out of your wilderness, सिर्फ आप अपने रेगिस्तान में से बाहर ही नहीं आएंगे, but your world will celebrate with your breakthrough. लेकिन आपका जगत जो है, आपका दुनिया आपके साथ जश्न भी मनाएगी। You will have your testimony this week in Jesus' name. इतने में आपके पास आपकी गवाही होगी। Lift your hand and shout your biggest hallelujah so far. अपने आवाज चिल्लाए हालेलुया।